Welcome to SLD online class 7th standard general science. We were in the chapter 5th, that is food safety. In this video we are going to learn about the quantitative waste of food and the qualitative waste of food, how to preserve the food and what is the how to protect and what is the prevention of the food. So first we will read about quantitative waste of food. हम लोग 5th चैप्टर में थे, वो है फूड सेफ्टी, और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड और क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड, और उसको कैसे प्रिवेंट करना चाहिए, उसको स्टोर कैसे करना चाहिए, उसे प्रोटेक्ट करना कैसे चाहिए, ये सब हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड: wrong method of farming like hand sowing of seeds, inadequate trading, improper storage and wrong method of distribution are some reason for quantitative wastage of food. Besides, much food is waste as a result of the customs of offering and serving too much food to a guest at a traditional feast or a banquets. Had it not been wasted, all this food could have meant the need of many other. What happened? The quantitative waste of food means the wrong method, the farming like hand sowing of seed and trading, improper storage and wrong method. If we are not storing the food properly, or when we are sowing the seed and we are sowing with our hand and we cannot sow it properly, and there is a improper storage and wrong method, so the food will be waste. And in a function, if we are offering the food improperly and this food we are serving more to the guest and they will not eat properly and that food will be waste. क्या होता है इन क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड? मतलब क्या है, जो खाना अभी हम लोग फार्मिंग में जैसे अब सो कर रहे हैं सीड, तो उसमें भी वहाँ पे भी क्या होता है, हम हाथ से सो करते हैं तो खराब हो, तो क्या होता है, हर एक जगह पे बिखर जाता है और कोई अच्छे से रहता है और अच्छे से ग्रोथ होता है, नहीं तो नहीं होता है. और अगर फंक्शन में जब हम फूड खाते हैं, खाना दिया जाता है गेस्ट को, अगर हम लोग ज़्यादा सर्व कर दिए, उनके वो जितना खा सके उससे ज़्यादा अगर हम सर्व कर देते तो क्या होता है, वो खाना वेस्ट हो जाता है, वो लोग छोड़ देते हैं. अभी फॉर एग्जांपल हम लोग ही खाना खाते रहते हैं, तो हम अपने हिसाब से ज़्यादा अगर खाना ले लिए तो क्या होता है, वो वेस्ट होता है ना. तो ऐसे वेस्ट करने के लिए ही कहते हैं वे क्वांटिटेटिव वेस्ट ऑफ फूड होता है. Now, qualitative wastage of food: using wrong method of protecting food. Excessive use of food is a wastage. Overcooking, washing the vegetable after cutting them, mishandling of fruits like grapes and mangoes, miscalculation of time required to transport food from production to consume are some of the causes of quantitative waste of food. Qualitative waste of food means if we are not protecting the food properly, and the preservative, if we are not preserving it properly, and the overcook means if we are cooking more food, and washing the vegetable after cutting, if we wash the vegetable after cutting them, it will get spoiled. And if we are not handling properly fruits like grapes and mango, it gets spoiled. So this is known as the क्वालिटेटिव वेस्ट ऑफ फूड. क्वालिटेटिव वेस्ट ऑफ फूड मतलब क्या है, जब हम फूड अच्छे से नहीं रखते हैं, उनको हम अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं करते, प्रिजर्व अच्छे से नहीं करते. अभी जितना हमें 2 आदमी के लिए खाना बनाना है, उससे अगर ज़्यादा हम 2 आदमी के लिए खाना बनाना और 4 आदमी जितना खाना बना देंगे, वो खाना वेस्ट होता है. और वेजिटेबल कट करने के बाद धोते हैं तो वेजिटेबल्स क्या होते हैं, और वेजिटेबल्स ख़राब, इससे पहले धो लेना चाहिए, उसके बाद कट करना चाहिए. और फ्रूट्स जैसे ग्रेप्स हुआ, मैंगो हुआ, अगर हम उसे अच्छे से नहीं रखें तो क्या होगा, वो ख़राब हो जाता है. तो इससे क्या है, और ट्रांसपोर्ट में भी अगर वो अच्छे से प्रोड्यूसर्स तो कंज्यूमर अच्छे से नहीं गया तो यहाँ पे भी फूड ख़राब हो सकता है.
What can you do to prevent food wastage and spoilage? Serve yourself only as much as you can eat. What to prevent and how to prevent? What we should do to prevent the food wastage and spoilage? हमें खाना प्रिवेंट कैसे करना चाहिए जो ख़राब ना हो सके और वो वेस्ट ना हो सके, स्पॉइल भी नहीं हो पाए और ख़राब वेस्ट भी ना हो पाए. तो फर्स्ट इज़ serve yourself only as much as you can. You are going to serve yourself and you are going to take that much only that you can, how much you can eat. पहले क्या है फर्स्ट पॉइंट, आपको उतना ही खाना लेना है, अपने हाथ से सर्व करो उतना ही लेना है जितना आप खा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं. अवॉइड ओवर कुकिंग फूड. यू आर गोइंग टू अवॉइड ओवर कुकिंग फूड. आपको खाना ओवर कुकिंग ज़्यादा नहीं पकाना है, कम ही. Avoid throwing away leftover food. Reuse it in a proper way. You are going to avoid the food that is leftover and you can reuse it in a proper way. आप जो खाना बनाए हो अगर वो बचा है तो उसे फेंको मत, उसको आप प्रॉपर वे में यूज़ करो, कुछ और बना उससे ही बना के खाओ. Buy only a much grain, vegetables, fruits, milk, etc. as you need. Avoid the temptation to make excessive purchase. What you are going to buy only a much grain like vegetables, fruits, milk as much you need. Don't buy more. आपको उतना ही खरीदना है जितना आप एक दिन के लिए चाहिए, उससे ज़्यादा मत खरीदो. Store grain and other perishable foodstuffs like vegetables, fruits, milk, etc. using a proper method. You are going to store it in a proper method. कोई भी चीज़ जो आप खरीद रहे हो जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट, मिल्क हुआ, उसे प्रॉपर मेथड में आप यूज़ करोगे. चेक द एक्सपायरी डेट ऑफ बॉटल, कैन and packed food and use within that time. Whatever you will buy, you are going to see the expiry date. कोई भी चीज़ आप खरीदते हो तो उसके पैक पर, कोई भी बॉटल पे, हर एक पे चीज़ में आप लोग एक्सपायरी डेट देख के खरीदना है और वो एक्सपायरी डेट के अंदर ही आपको यूज़ करना है. Eat all the food that you have served yourself. You are going to eat all the food that you have served yourself. कोई भी खाना आप लिए हो जितना अपने प्लेट में, वो पूरा खाना आप खाओगे. Food storage and preservation. Now we are going to read about the food store, how we have to store the food and how to preservation. हम अब पढ़ेंगे फूड को कैसे स्टोर करना और उसको प्रिजर्वेशन कैसे करना है. We have learnt about various methods of safe storage of food like freezing, drying, boiling, airtight packing, etc. These different methods prevent the growth of microorganisms in food and thereby save the food from spoiling. क्या होता है फूड स्टोरेज, हम लोग फूड को कैसे सेफ्टीली रखना है. हम लोग बहुत सारे मेथड है, जैसे फ्रीजिंग कर सकते, फ्रीज़र में रख सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं, वो खाने को 2-3 बार हम बॉईल करके रख सकते हैं, और एयर टाइट पैकेजिंग कर सकते हैं, उसको अच्छे से पैक कर सकते हैं. ये सब मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं. और यहाँ पे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है वो ग्रोथ होने से बच सकता है इन फूड. उसके बाद हम लोग वो दे बाय सेव द फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग. बाय माइक्रो ऑर्गेनिज़म से हमें प्रिवेंट करना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म ग्रोथ ना हो और वो फूड स्पॉइल नहीं हो पाएगा. फूड प्रोटेक्शन एंड फूड प्रिजर्वेशन. हाउ टू प्रोटेक्ट फूड एंड व्हाट इज़ द फूड प्रिजर्वेशन. फूड को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसको प्रिजर्वेशन कैसे करना चाहिए. फर्स्ट, फूड प्रोटेक्शन. Protection of food spoilage by microbial growth and infection by pests is called food protection. Food protection मतलब क्या है, prevention of food spoilage. फूड जो स्पॉइल होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उस पर ग्रोथ हो जाते हैं, इससे सब बचाने, उसको क्या कहते हैं, फूड प्रोटेक्शन कहते हैं. फूड प्रिजर्वेशन.
Use of various preservatives to prevent for a long period of time from food spoilage due to internal factors is called food preservation. Food preservation means we are preventing the food for a long time to that it cannot get spoiled. इंटरनल फैक्टर्स से हम लोग यूज़ कर क्या है फूड प्रिजर्वेशन, जो हम बचा हुआ खाना जो रहता है वो स्पॉइल ना हो पाए, हम बहुत सारे मेथड यूज़ करते हैं घर पे और वो स्पॉइल ना हो पाए और बहुत लॉन्ग टाइम पे चले करके उसको क्या कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन. Now we are going to read about the method of food protection. अभी हम पढ़ेंगे कौन सा मेथड हम लोग फूड प्रोटेक्शन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट है फ्रीजिंग है, स्मोकिंग है और यूजेस ऑफ इंसेक्टिसाइड्स है, रेडिएशन है और यहाँ पैरासिटेशन है और यहाँ पे यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव्स जैसे नेचुरल प्रिजर्वेटिव, केमिकल प्रिजर्वेटिव है और यूज़ ऑफ इंसर्ट गैस. ये सब यूज़ करके हम लोग फूड कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट फ्रीजिंग. Biological and chemical reaction in food material are slowed down at a low temperature. As a result, food remain in good condition for a longer duration. That is why refrigerators are used in the kitchen. What freezing means the biological and chemical reaction in the food material is slowed down. When we will keep in the freezer, the food material the chemical reaction in the food material will be slowed down at a low temperature and the food remain good for a longer time. कोई भी चीज़ जो हम लोग फ्रीजर में रख देंगे, किचन का कोई भी सामान, वो जो केमिकल रिएक्शन उसमें होता है फूड में, वो अगर फ्रीजर में रखने से लो टेम्परेचर में क्या होता है वो फूड ठंडा हो रहता है और ठंडा होने की वजह से वो ख़राब नहीं होता है, बहुत टाइम तक हम उसे खा सकते हैं. स्मोकिंग. फूड इज़ प्रिजर्व विद द हेल्प ऑफ स्मोक. एल्यूमिनियम फॉस्फाइड इज यूज इन दिस मेथड. व्हाट इन स्मोकिंग? When we smoke when we are preserving the food with the help of smoke, aluminium phosphide is used to prevent the food so that the food can be protected. क्या होता है, कोई भी फूड हमें स्मोक करेंगे फूड को तो उसमें एक केमिकल है, वो है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड. उसको यूज़ करने से वो फूड बहुत देर तक रह सकता है. यूज ऑफ इंसर्ट गैस. Nitrogen gas is filled in an air-tightened package of potato wafer and other food product, thus preventing the growth of the fungus and insect in it. क्या होता है, इंसर्ट गैस को यूज़ करते हैं, जैसे लाइक नाइट्रोजन गैस इज यूज टू प्रोटेक्ट दे आर फिल्ड इन अ चिप्स पैकेट, वेफर पैकेट दैट इट कैन बी protect and it can be good to eat for a long time. Fungal infection and insect cannot harm the food. क्या होता है, इंसर्ट गैस को यूज़ करते हैं, वो गैस का नेम है नाइट्रोजन गैस. वो क्या करते हैं, एयर टाइटनेट कोई भी पैकेज में रहता है, जैसे पोटैटो वेफर्स हुआ, उस सब में वो लोग डालते हैं, जैसे फूड जो है लॉन्ग टाइम पे बहुत दिन तक चले और उसमें इंसेक्ट सब ना ग्रो हो पाए. Uses of insecticides. Melatonion is sprayed on the Guinness bag containing food grain. Guinness. What happened? Uses of insecticide. इंसेक्टिसाइड पे एक मिलेटिनॉन करके एक केमिकल है, वो स्प्रे करते हैं गोनीस पे, जो भी बैग में ग्रेन रहता है, तो उससे क्या होता है, ग्रेन खराब नहीं होता है. Irradiation. In this method, food is exposed to the ionizing radiation such as high energy electrons emitted by accelerators, X-ray, Gamma ray emitted by radioactive
isopods, etc. These processes destroy the microbes, insect, etc. Shelf life of fruits increases due to the increase in ripening period. The shelf life of the potatoes and onion increases due to the slows down sprouting. What happen? Irradiation is the one chemical method. The food is exposed to the ionizing radiation. They will give a radiation as the high energy electron is emitted. The X-ray, gamma rays emitted by the radio expose. क्या होता है इसमें? एक्सरे और गामा रेज डालते हैं जो वो फूड को प्रोटेक्ट कर सकता है, माइक्रोब और इंसेक्ट सब, वो फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को बहुत दिन तक चलने के जैसे उनका लाइफ स्पैन क्या करते हैं, एक्सपैंड हो जाता है. जैसे पोटैटो, ऑनियन का सब वो स्पॉइल जल्दी नहीं होता है. तो वो लोग यूज़ करते हैं इरेडिएशन. वो रेडियो इलेक्ट्रिसिटी के जैसे एक रे रहता है, वो यूज़ करके वो लोग पोटैटो, इन लोग का सब रेडियो एक्टिविटी यूज़ करते हैं और इनका लाइफ स्पैन वो एक्सपैंड कर देते हैं. Uses of preservatives. Here in these uses of preservative we are going to learn about natural preservative and chemical preservative. Natural preservative. Some naturally available material like salt, sugar, oil are used as preservatives in pickles, jams, murabbas, pita, etc. What happened? See here, in a natural preservative they are using salt, sugar, oil to prevent the food that it cannot get spoiled, like pickles, jam, murabba, पेठा. ओके, ऑल दिस. क्या होता है? अभी कोई भी चीज़ नेचुरल प्रिजर्वेटिव क्या यूज़ करते हैं? सॉल्ट यूज़ करते हैं, शुगर यूज़ करते हैं और ऑयल यूज़ करते हैं. जैसे वो जो भी चीज़ में डाला जाएगा वो ख़राब नहीं होगा. तो उसमें क्या है? पिकल और जैम. पिकल में क्या डालते हैं? ऑयल और सॉल्ट डालते हैं. जैसे पिकल जो अचार उसको कहते हैं ख़राब ना हो. और जैम में क्या डालते हैं? शुगर डालते हैं कि जैम ना खराब. मुरब्बा में क्या डालते हैं? मुरब्बा में डालते हैं शुगर, जो मुरब्बा जल्दी ख़राब नहीं हो रहा. पेठा में भी शुगर डालते हैं जैसे वो पेठा ख़राब नहीं होना चाहिए. तो ये नेचुरल प्रिजर्वेशन है. अभी केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, एसिटिक एसिड, विनेगर, citric acid, sodium benzoate, and some nitrate and nitrous salts are some example of the chemical preservatives. These are used in the sauces, jellies, jams, and in a package ready to cook vegetables and ready to eat food, etc. These preservatives keep the food safe for a very long duration. What they are in a chemical preservative, they are using vinegar, that they will call it acetic acid, citric acid, and sodium benzoate, and the nitrate and nitrates are the salt they are using it in, that the food cannot get the spoil. Like in a jellies they are using in a sauce, and they are using in a jam, and the food that we can cook and eat. all the मसालास दे आर यूजिंग ऑल दिस. क्या होता है? एसिटिक एसिड है, क्रिस्टिक एसिड है, सोडियम बेनोजेट है और नाइट्रेट है, नाइट्रिस है, सॉल्ट है. ये सब यूज़ करते हैं वो लोग. जैसे खाना जल्दी खराब, जैसे मसाला लेते हैं बाहर का, ये सब खराब नहीं होना चाहिए, लॉन्ग ड्यूरेशन तक चल सके करके वो लोग ये सब यूज़ करते हैं. Now, pasteurization. This method involves heating the milk or other similar foodstuffs up to a certain temperature. Example, milk at 80 degrees Celsius for 15 minutes or cooling is quietly. This destroys the microbe prevent in the milk, and it keeps for a longer time. What pasteurization means? We will boil the milk. We are heating the milk and or any other food stuff that it can in a certain temperature that it cannot get spoiled. Microorganism, when we boil it, the microorganism will die. क्या होता है?
अभी कोई भी चीज़ हम लोग बॉईल करते हैं, हीट करके रख देते तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस, कोई भी चीज़ नहीं ग्रो होता है, तो इससे वो फूड प्रोटेक्ट हो। कोई एक सर्टेन टेम्परेचर तक हम लोग बॉईल करते हैं। जैसे एग्जांपल हम मिल्क लेते हैं, मिल्क को हम 15 मिनट बॉईल करते हैं और वो बाद में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। लेकिन उसमें जो बॉईल हम लोग करते हैं तो उसमें जो माइक्रोब्स रहते हैं वो मर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते, तो वो मिल्क बहुत दिन तक, लॉन्ग ड्यूरेशन, बहुत देर तक वो चलता है। Now we are going to read about the food is adulterated in this way too. फूड को हम लोग और एक मेथड से एडल्टरेट कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, रिमूवल ऑफ फैट कंटेंट्स ऑफ मिल्क, इंश्योर ऑफ कोवल्स एंड कैरोडोम्स। क्या होता है, अगर हमें फूड को देर तक रखते तो कोई भी चीज़ जैसे कंपोनेंट्स निकाल सकते। जैसे मिल्क में क्या हुआ, उसका फैट, बटर जो रहता है ना, आप मलाई पड़ता है, देखो दूध बॉईल होने के बाद मलाई पड़ता है, मलाई को निकालने के बाद उसमें अगर आप लवंग रख दोगे और दालचीनी रख दोगे तो क्या होता है, उससे दूध खराब नहीं होगा। मिक्सिंग ऑफ अ लो क्वांटिटी ऑफ इनएडिबल or chopper material or a harmful color with it. We are mixing a low quantity of edibles or chopper material or a harmful color with food. Mixing of some harmful material like small stones, fine sand, iron, filling, urine, runs of horse, सॉक, डस्ट। क्या होता है, बहुत लोग मिक्स करते हैं फूड मटेरियल में, जैसे वो लोग ऐड करते हैं। सी चिल्ड्रन, ये सब क्या है, अगर हम मिल्क में लवंग और दालचीनी डालेंगे तो मिल्क खराब हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, और कोई भी एडिबल चीज़ में लो क्वांटिटी का हम लोग यूज़ करते हैं तो वो उसमें भी वो सब खराब, ये सब हार्मफुल थिंग है। और यहाँ पे देखो, अगर हम मिक्स करते हैं कोई भी फूड में, स्मॉल स्टोन रहता है, फाइन सैंड, ये सब हार्मफुल है, अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग खाएंगे वो हार्म होगा। द हेल्थ ऑफ अ पीपल, यंग एंड द ओल्ड, पुअर और रिच, इज endangered by food. Adulteration, during different of adulteration affect our health in a different way. Some adulterants causes abdominal discomfort or poisonings, while some may affect the functioning of some organs if consumed over a long period of time, or each even causes a cancer. When we see the health of the people, it depends on the what food we are eating. If we will not eat the proper food, then it will harm us, and it poisonous us. So people can die also. It can cause us a cancer also, and people can die. अडल्ट्रेशन मतलब क्या है, जो हार्म करता है। तो अगर हम अच्छे खाना नहीं खाएंगे, अगर दूध में हम लोग दालचीनी लवंग डाल देंगे, क्या होगा, दूध खराब हो जाएगा और हम खराब दूध नहीं पी सकते। अगर वो पिएंगे तो हमें वो हार्म करेगा, तो हमारा तबीयत खराब हो सकता है। और अगर राइस में, दाल में छोटा छोटा सैंड है या स्टोन से, अगर हम वो स्टोन सैंड नहीं निकाले, या आयरन है, आयरन फिलिंग जो छोटा छोटा बहुत रहता है, वो सब रहेगा, अगर हम वो खाएंगे तो हमें हार्म करता है, हमें कैंसर हो सकता है और हम मर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग मर सकते हैं। हाउ विल यू फाइंड आउट इफ फूड हैज़ बीन अडल्ट्रेटेड? अब हाउ वी विल, हम कैसे फाइंड करेंगे फूड अडल्ट्रेटेड है? सी, फूड मटेरियल अडल्ट्रेटेड, टेस्ट, कंसुलेशन। First we will take milk in a food material, adulterated water. How much water they have mixed? First test, put a drop of milk on a glass, slide and slightly incline it to spread the drop. आप ड्रॉप
मिल्क लोगे और ग्लास में ड्रॉप ऑफ मिल्क डालोगे तो उसमें देखोगे कितना वो स्प्रेड हो रहा है, वो एक ड्रॉप। Conclusion: if the spread mark of milk does not appear milky white, water must has been added to it. If the spread milk, जो मिल्क स्प्रेड होता है, अगर वो मिल्की वाइट में नहीं रहेगा तो हम इसमें जान सकते हैं कि मिल्क में पानी वाटर ऐड किया है। अगर हम ड्रॉप ऑफ पानी गिराएंगे ग्लास में तो वो क्या रहना चाहिए, वो मिल्की वाइट में रहना चाहिए। अगर मिल्की में नहीं है तो क्या होगा, उसमें पानी मिलाया है करके हमें मालूम पड़े। रेड चिली पाउडर, ब्रिक डस्ट। रेड चिली पाउडर लेंगे तो अडल्ट्रेंट में क्या आएगा, उसमें ब्रिक डस्ट। तो टेस्ट क्या है, टेक अ स्पून फुल ऑफ चिली पाउडर इन अ बीकर, एड वाटर अप टू हाफ ऑफ द बीकर, stir it and leave it undistributed for a few minutes. Up, we are going to take a 1 tablespoon of red chili powder in a beaker and you will add a water in a half beaker. Half full of beaker you will add water and you will stir it and leave it for a minute. आप एक स्पून चिली पाउडर लोगे और उसको छोड़ दोगे, मिला के पानी में मिला के छोड़ दोगे, बाद में उसको देखोगे। कंक्लूजन देखो, इफ अ रेड लेयर इज सीन सेटल एट द बॉटम ऑफ द ब्रीकर, इट मस्ट हैज बीन अडल्ट्रेटेड विद द ब्रिक डस्ट। अगर रेड लेयर जो है सेटल हो जाता है बॉटम में, बीकर के बॉटम में, तो आपको मालूम पड़ता है कि उसमें ब्रिक डस्ट मिलाया है। ब्रिक डस्ट क्या होता है, रेड कलर में रहता है, तो उसमें चिल्ली पाउडर में आपको मालूम पड़ेगा ब्रिक डस्ट मिलाया गया है। टर्मरिक पाउडर, turmeric powder, metallic yellow. Take a pinch of turmeric powder in a test tube, add a small quantity of water to it, shake the mixture and add a few drops of constant HCl. What you are going to take a pinch of turmeric powder in a test tube and you will add a water and you will shake and you will add a few drops of the HCl. Okay, after that what you will see, the mixture become red on adding HCl and the red color does not appear if metallic yellow is present. अगर HCl ऐड किया गया है, हाइड्रोक्लोराइड ऐड करोगे तो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। अगर मेटालिक येलो कलर मिक्स किया गया तो वो रेड कलर डिसअपियर नहीं होगा, वो रेड कलर नहीं आएगा। तो हमें मालूम पड़ जाएगा इसमें मेटालिक येलो ऐड किया कि नहीं। अगर मेटालिक येलो ऐड किया है तो रेड कलर अपीयर नहीं होगा, अगर नहीं ऐड किया है तो उसमें रेड कलर ऐड किया गया है। नाउ रवा, फाइन आयरन फिलिंग। पास अ मैग्नेट थ्रू द रवा। You will take a rava and if they will add anything, they will add a fine iron filling only. When you will take a magnet and you will pass through it, what the iron filling adhere to the magnet. Iron filling will adhere to the magnet. मतलब आयरन फिलिंग जब आप घुमाओगे रवा के पास तो क्या होगा, वहाँ पे आयरन फिलिंग क्या होगा, मैग्नेट में चिपक जाएगा। तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि इसमें कुछ मिलाया है या नहीं मिलाया। तो हमें ये सब मेथड है ये अडल्ट्रेंट की मिक्स किया गया है कि नहीं टेस्ट करने का। सो आई कंप्लीट हियर माय 5th चैप्टर। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द 6th चैप्टर।